ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं हाँ संदेश औलख शर्मा। जगबाणी टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲੀ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ। उधर ड्रग केस विच फसे बिक्रम सिंह मजीठिया नूं वड्डा झटका लग गया है। दरअसल उन्होंने अगाऊ जमानत दे लई पटीशन दायर की सी, जिस ते सुनवाई हुण अगे टाल दी गई है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 जनवरी तक सुनवाई है जो वो टाल दी है। इस केस विच पंजाब सरकार वल्लों पी चिदंबरम ते मजीठिया दे पक्ष विच एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बहस करनी सी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाल करन दी मांग की गई सी, पर हाई कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई किया है, जिस विच दोहां पक्षां दे सीनियर वकील पेश नहीं हो सके। इस वजह नाल दोहां पक्षां दी सहमति तो बाद मजीठिया दे खिलाफ सुनवाई टाल दी गई। इस तो पहला मोहाली कोर्ट पटीशन नूं खारिज कर चुकी है। साल खत्म होने वाला है, तो इस दे चलदियां चंडीगढ़ नगर निगम की आखिरी बैठक भी हुई। इस साल की आखिरी बैठक हुई, जिस दे विच कुछ नवे जिते हुए काउंसलर मुड़ तो इस बैठक का हिस्सा बने ते कुछ नूं हार का सामना करना पिया। मेरे तरस दे नैना नू नजर लबी। पिछले साल पूरी दुनिया विच फैली कोरोना महामारी के चलदियां पाकिस्तान विच स्थित श्री करतारपुर साहिब का लांघा भी श्रद्धालुओं लई बंद कर दिता गया सी। इस साल श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगवाई वाली पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार नूं इह लांघा खोलण दी मांग कीती सी। केंद्र सरकार वालों लांघा खोले जाण तो बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद श्री करतारपुर साहिब दर्शन करन लई गए। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया कि सूबा सरकार श्रद्धालुओं नूं इस पवित्र स्थान उत्ते नतमस्तक होण दे योग बनाउण लई लांघे तक बसां चलाएगी अते इन्हां बसां विच श्रद्धालुओं पासों कोई किराया नहीं लिया जाएगा। श्री करतारपुर साहब उस दिन मत्था टेकण गए सी। असीं उस दिन ऐलान किया सी कि इत्थे असीं फ्री किराया नहीं लवांगे। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਚਿੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस दौरान कहा कि पंजाब सरकार श्री करतारपुर साहिब के दर्शनां लई जाण वाली संगत नूं हर तरह की सहूलत उपलब्ध करवाउण लई वचनबद्ध है ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2022 ਆਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। इस दौरान कुछ हस्सी दे पल भी गुजारे गए। गल करिए भाजपा कौंसलर गुरप्रीत ढिल्लों दी, तां इस मौके उन्हां कहा कि उन्हां दे कई कौंसलर हारे हन, पर उन्हां नूं पेपर ही नहीं देण दिता गया। कोशिश करें
40 41 का 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 22 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੰਦਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲੇ ਹੀ ਸਦਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜਾ ਬਬਲਾ ਸਦਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪ पार्टी दिल्ली की तरह चंडीगढ़ ਵਿੱਚ ਉਹ वादे पूरे नहीं कर पाएगी। हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। आज की सदन की लास्ट मीटिंग है। नेचुरली होता है कि जब इतने साल 5 साल सभी साथियों के साथ काम किया हो तो जब वहाँ बिछड़ना होता है तो नची वो भावुक पल जो है हो जाते हैं। जाने को दिल तो नहीं करता बट ये है कि 5 साल का टाइम होता है। अभी जो मेरी कमी जो है वो मेरी धर्मपत्नी हरप्रीत कौर बबला यहाँ पूरी करेगी और आप मिलकर अपने वार्ड के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से अभी हमने सबसे ज़्यादा मार्जिन से ये सीट जीती है अगली बार इस मार्जिन को और बढ़ाएंगे। एक सर आपने कहा था कि आप पार्टी को इतना बहुमत मिलेगा, आपको भी उम्मीद नहीं थी। सभी कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी कि कांग्रेस और भाजपा का एक दौर रहता था, आपके दिग्गज नेता भी भाजपा के भी दिग्गज नेता हारे, क्या कहेंगे? ऐसे है कि हमारे भारत की जनता जो है बड़ी ही भोली जनता है, उनको कुछ भी कह दो वो मान जाते हैं। आप वालों ने जो है एक झूठे वादे नारे लगाए कि हाँ बिजली पानी जो है फ्री देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है और लोग उनके झांसे में आ गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि उनका मेयर बनाना चाहिए पहले ताकि पता लगे कि हाँ वो क्या कर सकते हैं, तो पता लगेगा जनता को उनका। ये दिल्ली नहीं है, ये चंडीगढ़ है। लगता है सर उनका मेयर बनेगा क्योंकि बहुमत किसी को भी नहीं मिला, दोबारा इलेक्शन की ओर तो नहीं जा रहा ये? हो सकता है जी, देखो क्या होता है क्या होता है। देखो ऐसा तो नहीं, चुनाव तो नहीं होगा, मेयर तो किसी न किसी का बनेगा ही, चाहे किसी का भी बने। इस मौके श्रोमणी अकाली दल तो जीते हरदीप सिंह ਅਤੇ दिलीप शर्मा ने भी इस अंतिम बैठक ਵਿੱਚ सदन ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। बिल्कुल बहुत वधिया साडा समा रहा 5 साल का। मैं तो यही कहांगा कि बड़े खट्टे मिठे तजर्बे रहे, असी मिल के काम भी किया। कई साल मैं रूलिंग च रहा ते लास्ट जदों तो साडा किसान अंदोलन तो बाद असी ओपोजिशन के रोल च भी रहा। पहली टेन्योर है मेरी जिहदे च मैं रूलिंग च भी रहा और ओपोजिशन च भी रहा। दोनों असी जिहड़े सीगे काम बखूबी निभाए हैं ਤੇ ਤਾਈ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ दोबारा चुन के भेजा। बड़े मार्जिन से आप जीते हैं अपने वार्ड में, काफ़ी कंपटीशन था क्योंकि बीजेपी की हम बात करें वहाँ से भी कंटेंडर तेज थे और कांग्रेस के भी भूपेंद्र सिंह बरेडी के बेटे थे, तो किस तरह का रहा फिर ये सब? नहीं, मैं अपने ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। मैं हमेशा कहना ਹੁੰਦਾ है मेरे ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਨੇ कि मेरा 5 साल का प्यार कोई 15 दिन च नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं लोगों के विच रहना, लोगों की सलाह दे नाल काम करदा ते जिहड़े मेरे तो वड्डे उन्हां दा बेटा, जिहड़े मेरे बराबर दे उन्हां दा भरा, जिहड़े मेरे तो छोटे आ उन्हां वास्ते मैं एक रोल मॉडल बन के काम करदा ते जिहड़ा साडा काम करन दे तरीके नूं लोग पसंद करदे ने। इस करके ही असीं अपना दोबारा ਉਹ ਸਾਡਾ मेरा वार्ड नहीं, मैं अपना परिवार कहना हुंदा। बुजुर्ग ने जिहड़े मैनूं ब्लैसिंग्स दिंदे ने जिन्हां दी बदौलत मैं अज इत्थे खड़ा। एक हम बात करें थे इलेक्शन में किसी को भी मैंडेट नहीं मिला है, मैंडेट से दूर हैं, तो मेयर इलेक्शन को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं, आप किसी को समर्थन देंगे? नहीं, हाले तक जो मेरी हाई कमांड असीं मीटिंग करांगे जी, जो शहर दे हित च होएगा असीं वो फैसला करांगे, क्योंकि जो वोट पाना नहीं पाना, किहनूं वोट पाना है, जो साडे पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी कहेंगे मैं उवें अपना फैसला लूँगा। वैसे आपको लग क्या रहा है कि अगर समर्थन नहीं मिलता तो इलेक्शन दोबारा होने की कगार भी आएगी कि समर्थन मिल जाएगा? नहीं, ऐसा एक्ट में कुछ भी नहीं है कि दोबारा इलेक्शन हो। ये जिसको ज़्यादा वोट पड़ गए उसका मेयर बने। देखिए, वार्ड की जनता का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हैट्रिक लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि बापू धाम वार्ड नंबर 3 के अंदर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाया।
क्योंकि मैंने और मेरे परिवार ने, हमारे पहले भी जो भाभी काउंसलर थी, हमने लगातार जनता के बीच में रहकर कार्य किए हैं और वो कार्य जनता को पसंद आए हैं और जनता के हित की बात हमने की और जनता ने अपने वार्ड के हित के लिए मुझे दोबारा से वहाँ से जिताया है। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप आज़ाद पार्षद के तौर पर जीते थे, फिर भाजपा में आए थे, और अनुभव किस तरह के रहे इन 5 सालों के अंदर? देखिए 5 वर्षों में अनुभव रहा है, बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि हम लगातार जनता के बीच में रहे और जनता ने फिर से हमें आशीर्वाद दिया और यही कारण रहा कि हम जीते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जीतता है और जीतने के बाद वो जनता के बीच में रहकर कार्य करता है तो जनता का आशीर्वाद स्वाभाविक है, मिलता है। कुछ ऐसा भी होता है कि चुनाव में बहुत से कैंडिडेट खड़े होते हैं और अपने सभी जीत के दावे करते हैं, लेकिन आज मैं बापू धाम की जनता और वार्ड नंबर 3 की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनका आशीर्वाद है और जो लंबित कार्य हैं वो सभी पूरे होंगे। और मैं एक और बात कहता हूँ कि पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से कि सभी ने मुझे वोट दिया है, कोई उसमें पार्टी का कोई वो नहीं है कि किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी साथी, कोई भी बापू धाम की जनता का व्यक्ति मेरे पास अगर आएगा तो मैं उसका कार्य करूंगा। और कोई द्वेष भावने की राजनीति हम नहीं करते। हम सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम जनता के बीच में गए थे और अब आगे भी हर व्यक्ति का कार्य होगा। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा, कोई भी कार्यकर्ता मेरे पास आएगा, कि चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसने वोट दिया चाहे नहीं दिया, अब तो सभी ने वोट दिया है और सभी का मैं आदर सत्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन भाइयों बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस लायक बनाया कि भी जनता की सेवा अभी और करनी है। तो 5 वर्ष और मिले हैं। पिछले 10 वर्षों में जो हमने किया जनता को पता है और इसीलिए जनता ने आशीर्वाद दिया। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन 5 वर्षों में बापू धाम के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा, नए मुकाम पर पहुँचेंगे और चंडीगढ़ की तमाम कॉलोनियों में सबसे सुंदर कॉलोनी अगर कोई होगी तो बापू धाम होगी और वार्ड नंबर 3 होगा। ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं। दस दिन दिया कि अज पंजाब दौरे ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो चंडीगढ़ च आप दी जित की खुशी च विजय यात्रा करन गए। जगबानी टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो भगवत सिंह की रिपोर्ट। ठगी करन दे बहुत सारे मामले तुसी देखे सुने होणगे, पर इस मामले बारे जिस बारे असीं तुहानूं दस्सण जा रहे हां उस नूं जाण के तुसी हैरान रह जाओगे। दरअसल फ्रेंडशिप करवाउण ते पैसा कमाउण दा बहाना लगा के एक व्यक्ति कोलों हज़ारां रुपए लुट्टे गए, ठगी मारी गई। पर तुहानूं इत्थे भी दस दईए कि पुलिस ने आरोपी नूं गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ फ्रेंडशिप ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਚਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 86,000 ਰੁਪਏ ਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 39 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰੀਓਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਗਰੋਹਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। फड़े गए आरोपी की पहचान उक्त पिंड के वार्ड नंबर 5 के रहने वाले प्रदीप उर्फ विक्की जिसकी उम्र 31 साल है दे रूप विच हुई है। आरोपी नूं पुलिस ने बुधवार नूं कोर्ट विच पेश किया ते जितों पुलिस ने उसका 3 दिनों का पुलिस रिमांड भी हासिल किया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी तो पता लगा रही है कि अजिहे तरीके अपना के उसने होर किन्ना लोकां नूं ठग्या। ये लड़की की शिकायत पे साइबर सेल ने एक्ट किया है और काफ़ी अच्छा काम किया और उसको जो झांसा देके लड़की को उसको पैसे ठगता था उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसका इन्वेस्टिगेशन ऑन है अभी। उते इस मामले विच गिरफ्तार किए गए आरोपी तो पुलिस पुछगिछ कर रही है ते हुणे देखना होवेगा कि इस मामले विच पुछगिछ तो बाद की कुछ निकल के सामने आउंदा है। जगबानी टीवी चंडीगढ़ दे लई कुलदीप कुमार दी रिपोर्ट। कोरोना का कहर फिर तो वाधा जा रहा है, मामलों दे विच लगातार इजाफा होंदा जा रहा है। अजिहे विच असीं गल कीती है चंडीगढ़ दे अस्पताल दे डॉक्टर दे नाल जिन्हां ने दस्सिया कि जिहड़ी हुण 15 तो 18 साल दे बच्चों नूं वैक्सीन लगनी है उस नूं लैके किस तरह दी गाइडलाइंस जारी कीतियां गईयां ने। देखिए, भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार
15 साल से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण का कार्यक्रम जो है 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा। और 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए हमने यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर जो है इसमें अपने सरकारी अस्पतालों में और PGI 32 में और कुछ स्कूलों के अंदर हमने विशेष व्यवस्था की है ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, जैसा कि आप एक बार मान के चलिए, जो टीकाकरण शुरू हुआ था, ये टीके जो लग रहे हैं बेसिकली, ये टीका जो है ये कोरोना से जो भयंकर इसके ग्रस्त लोग होते थे उससे बचाने के लिए है। जो आपकी सामाजिक दूरी के और मास्क के जो मापदंड हैं जो पहले इसके कोरोना के लिए अपना निर्णित किए गए हैं, ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका विकल्प नहीं है। जो टीकाकरण जो है इससे जो है बीमारी का फैलने की आशंका कम रहती है, लेकिन आप यदि ये कहें कि 100% बीमारी नहीं होगी और सामाजिक दूरी का और मास्क का पालन नहीं करेंगे आपका काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये टीका जो है केवल टीका ही बचाव है और जब तक आप इस मानकों का पालन नहीं करेंगे तब तक आप कोरोना से कभी भी ग्रस्त हो सकते हैं। एक MLA ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਵੇਂ ਗਾਮ ਦੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। SB ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੇਤਨ ਵੰਸਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੀਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆधार ਤੇ छानबीन करते हुए हिमांशु ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया कि MLA हॉस्टल में एक गाड़ी का शीशा टूटा है और उसको आग लगी है, तो तुरंत ही इसमें FIR दर्ज कर दी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने जो भी इसके CCTV फुटेज वगैरह थी उसको ट्रेस करने की सारी कोशिश करी जिससे हम गाड़ी को आइडेंटिफाई कर पाए। उसके बाद जो गाड़ी थी ये हमने जब्त कर ली है और ये गाड़ी का एड्रेस जो आया था फिरोजपुर में आया था, बट गाड़ी ये आगे बिकी हुई थी। तो ये जो बंदा है हिमांशु जो हमने अभी पकड़ा है नया गांव का रहने वाला है, तो ये उस गाड़ी में था जिसने गाड़ी का शीशा तोड़ा था और तेल डालने के बाद गाड़ी को आग लगाई थी। तो बाकी इसके साथ 2 और बंदे थे जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, मुकेश और टिल्लू, तो उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेक्टर 10 में इनकी कहासुनी हुई थी। उसके बाद इन्होंने गाड़ी के पीछे लगा के गाड़ी का पीछा किया और पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा, दोबारा से फिर वापस आए वहाँ पे, तब गाड़ी को इन्होंने आग लगाई। दस दईए कि MLA ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। मोबाइल चोरी ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾਫੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੰਦੂ ਲਾਲ ਪਤੂਰੀ ਤੇ ਕਬੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਦੋਣਾ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰੋਪੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਆਰੋਪੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਨਾਰਥ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ DSP ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਆਰੋਪੀ 2 दिन ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 17 पुलिस स्टेशन को इसकी जो जानकारी मिली उसके मुताबिक उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन है और ये लोग अलग अलग राज्यों में उनको जाके बेचते थे और ये बाहर के रहने वाले हैं। तो पुलिस इसमें अभी उनको कार्रवाई कर रही है।
उत्तर भारत तो चोरी करके मोबाइल फोन ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਕੇਅਰ ਫॉर ਯੂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਵੀ ਕਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ गई है। देखो, चंडीगढ़ पुलिस पहले से ही सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देती है और प्रोफेशनल तरीके से उनको परफॉर्म करती है। जो भी जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर आती है टाइम टू टाइम हम अपने लोगों को ब्रीफ करते हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक सभी इसको फील्ड में रह के अंजाम देते हैं। जिस तरह से पिछले तरह के हमने इंतज़ाम किए थे वो काफ़ी उम्दा रहे थे और इस बार भी हमने कई चीज़ों को देखा है कि भी कहीं पे जाम ना लगे और अननेसेसरी फीमेल और मेल में कोई फ़र्क ना हो और नए साल को अच्छे तरीके से मनाएं। लेकिन कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए आपके माध्यम से मैं जनरल पब्लिक से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ताकि वो भी कोविड की गाइडलाइंस को, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस को फॉलो करें क्योंकि 1 तारीख से कुछ नई गाइडलाइंस चालू होने वाली हैं तो इस चीज़ का भी लोग ध्यान करें। और चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पे अपने हर जगह पे काफ़ी मुस्तैद रहने वाली है और जो शरारती तत्व हैं या कोई कानून को अपने हाथ में लेने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों के लिए ये सुविधा के लिए ये काम किया जाएगा कि आम जन इसमें परेशान ना हो और नया साल बड़े अच्छे से मनाएं। आपको भी आपके माध्यम से और इस मीडियम से मैं सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। एक पासे नवे साल की खुशी ते दूजे पासे कोविड-19 दी नवीਆਂ गाइडलाइंस ते इस बीमारी ਦਾ ਡਰ। ਇਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। रुख तापमान का कर लेने तो दस दें कि अज का तापमान किस तरह का रहा। अज वध तो वध तापमान 20.2 डिग्री सैल्सियस से घट्टो घट्ट तापमान 4.2 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। अज इस बुलेटिन के बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।